Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, today we are going to start with our geography, chapter number 6, major landforms of the earth. Now, do you know, students, what do you mean by landform? Landforms का मतलब होता है major थिंग्स ऑफ द अर्थ. थिंग्स मीन्स लाइक प्लेट्यूज, माउंटेन्स, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे अर्थ के, जो पार्ट हैं हमारे अर्थ के, हम उस बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीड. You must have seen some of the landforms features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. Now in this picture, students, you are seeing major parts of the earth landforms, like this is the mountain, this is mountain range, this is basins, this is plateaus, this is tributary, this is plain. So these all are called the landforms of the earth. नाउ वी हैव सीन कि लिथोस्फीयर के कुछ पार्ट रग्ड मीन्स रफ होते हैं और कुछ पार्ट बिल्कुल फ्लैट होते हैं. लिथोस्फीयर हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था. दैट व्हाट इज लिथोस्फीयर? द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, द लैंड पार्ट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. These landforms are the results of two processes. अब जो ये landform बनती हैं ये दो प्रोसेस से बनती हैं. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं वो भी धीरे धीरे मूव कर रहा है. Within the earth a continuous movement is taking place. अर्थ के अंदर एक continuous movement हो रहा है. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. जो अर्थ के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस है उसकी वजह से अर्थ का कुछ पार्ट या तो अपलिफ्ट हो जाता है या कुछ पार्ट अंदर सिंक मतलब डूब जाता है. कहीं कहीं जगह पे हम देखते हैं ना, जैसे कोई पार्ट अर्थ का बहुत ऊपर की तरफ है, कोई पार्ट नीचे की तरफ है. तो ये क्यों होता है? ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है. So the first process is internal process. Now here one box is given. Do you know a hill is a land? Underline this. A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. जो hill होता है वो generally normal area जो एक ज़मीन है उससे ऊंचा होता है. Generally a steep hill with an elevation of more than 600 meter is termed as a mountain. अगर हिल की हाइट 600 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको नाम देते हैं माउंटेन्स का. नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर. आपको ऐसे माउंटेन्स बताने हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी ज़्यादा है. एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट वी कैन से, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है 8000 मीटर से. नाउ टर्न योर पेजेस स्टूडेंट्स. द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सर्फेस. जो सेकेंड प्रोसेस है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस वॉज इंटरनल, सेकेंड प्रोसेस इज एक्सटर्नल. कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड जो अर्थ का जो पार्ट जो कंटिन्यूस वियर होता है और फिर वापस से बन जाता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसको हम देख सकते हैं. द वियरिंग सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. जो वियरिंग सरफेस होता है जहाँ से जो मिट्टी का पार्ट जो खराब होता है उसको हम बोलते हैं इरोजन. और जब वो प्रोसेस से फिर से सही हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिपोजिशन. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट. The wearing away of the earth's surface is called erosion and the surface is being lowered or the process of erosion are rebuilt by the process of deposition. जो पार्ट सही हो जाता है उसको हम बोलते हैं deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. ये कैसे होता है? ये water, ice या wind की वजह से होता है. Broadly we can group the different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. अब हम इन landforms को 3 parts में divide करते हैं: mountains, plateaus and plains. Now first one we will read is mountains. Now what is mountain, student? A mountain, underline this. A mountain is any natural elevation of the earth's surface. किसी भी natural surface की height, ऊंचाई, elevation means height, उसको हम बोलते हैं mountain. The mountain may have small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. कुछ mountains जो होते हैं वो तो हमारे cloud से भी ऊपर होते हैं और even जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर की तरफ अर्थ की सरफेस से बाहर जाते जाएंगे तो जो
क्लाइमेट है वो ठंड, हमें ठंड लगने लगती है. यूजुअली वी हैव सीन इन द माउंटेन एरियाज आर कोल्डर. वाई? बिकॉज दे आर ऑन हाइट एंड दैट्स वाई दे आर कोल्ड. सो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो माउंटेन पे ऊपर जाते जाएंगे तो वो एरिया ठंडा होता जाता है. इन सब माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट. कुछ माउंटेन्स पे बर्फ़ जमी रहती है, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स. लाइक दिस, सी स्टूडेंट्स. देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन सी एज दे आर अंडर द सी एज यू कैन नॉट सी. ऐसे कुछ माउंटेन्स जिसको आप नहीं देख सकते हो क्योंकि वो सी के अंदर है, समुद्र के अंदर भी माउंटेन्स हैं. बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट people live in the mountain areas, less people live in the mountain areas since the slope are steep, less land is available for farming. अब माउंटेन्स पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हार्श होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं. और यहाँ की ऐसे जो ज़मीन है वो सीधी तो है नहीं, ऐसे स्लैंटेड है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता. नाउ टर्न योर पेजेस. Mountains may be arranged in a line known as range. Underline this students. What is range? जब mountains को एक ही लाइन में अरेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज. लाइक दिस, इफ़ वी अरेंज द माउंटेन लाइक दिस, तो ये है रेंज. ये सारी रेंज, जब एक ही लाइन में सारे माउंटेन्स हैं ना, इसको हम बोलते हैं रेंज. मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. बहुत सारे माउंटेन रेंज काफ़ी 100 किलोमीटर्स तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं. द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली. माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप. हर एक माउंटेन की हाइट अलग होती है और हर एक माउंटेन का शेप भी अलग होता है. नाउ जो हिमालयाज़ हैं वो हमारे एशिया में हैं. जो हमारे एल्प्स माउंटेन है वो यूरोप में है, और जो एंडीज़ हैं वो साउथ अमेरिका में, और रिस्पेक्टिवली इनकी हाइट और शेप भी अलग अलग है. There are 3 types of mountains. Now student, 3 types of mountain होते हैं: fold mountain, block mountain and the volcanic mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं और जो एल्प्स माउंटेन्स हैं ये हमारे यंग फोल्ड पुराने माउंटेन्स हैं जिनकी रग्ड रिलीफ और हाई, जिनकी कॉनिकल पीक्स इस तरीके से, ये होती है पीक, तो इनकी जो पीक है ये ऐसे कोन शेप में है. The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. Underline this student. Fold mountain का example कौन सा है? Aravalli Range, जो हमारा oldest fold mountain है. 3 types of mountains थे, fold, block और volcanic. तो जो Aravalli है वो oldest fold mountain है. See students, in this picture the girl is making fold mountain. इस तरीके से होते हैं fold mountain, like this, ऐसे. तो जब आप अपनी बुक को ऐसे करेंगे ना तो ये एक fold mountain create होगा. The Aravalli Range is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion. और अब जो उसकी रेंज है वो worn down मतलब ख़राब हो गई है, अब नहीं है वहाँ पे इतने माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे इरोजन हो गया है. इरोजन मतलब जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई किसी वजह से, विंड वाटर या एयर की वजह से वो ज़मीन वहाँ पे वैसी नहीं रही. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are old fold mountain. ये एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट्स. अपालचिन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है और यूरल माउंटेन जो रशिया में है, ये इनके लो एलिवेशन, मतलब ये ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, इनको बोलते हैं हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. सेकेंड माउंटेन इज ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ब्लॉक माउंटेन कब बनाए जाते हैं? जब बहुत सारे एरियाज़ टूट जाते हैं और वो कुछ पार्ट उसमें नीचे हो जाता है और कुछ पार्ट ऊपर हो जाता है, लाइक दिस, ऐसे कुछ पार्ट ऊपर रह गया, कुछ पार्ट नीचे, तो ये होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स. द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्स एज होस्ट. जो पार्ट ऊपर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट. जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट. एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन. अंडरलाइन दिस. जो लोअर पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेबन. द राइन वैली एंड द वोस्जेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स. ये एग्जाम्पल हैं इसके, राइन वैली एंड वोस्जेस माउंटेन. Locate them on world map. This is your homework. This you have to do in your map. Now we come to volcanic mountain. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. अब volcanic mountain कैसे फॉर्म होते हैं? volcanic activities. जब ज्वालामुखी, जो हमारी volcanic ज्वालामुखी जैसे होता है ना, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस वजह से ये volcanic mountains बनते हैं. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. Mountains are very useful. जो mountains हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल. माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा जो जापान में, इसके एग्जाम्पल्स हैं.
अब माउंटेन्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, क्यों? माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. Mountains में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पानी मिलता है और ये पानी इरिगेशन सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हम टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं. इवन माउंटेन्स के पास बहुत सारे फ्लावर्स एंड एनिमल्स भी होते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गन, रेजन्स एक्सेट्रा. जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, किशमिश, गम. माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट. दे विजिट द माउंटेन्स फॉर द सीनिक ब्यूटी. टूरिस्ट के लिए भी अच्छी जगह है. सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स. ये सब जो भी सारे एडवेंचर होते हैं ये सब हम माउंटेन पे कर सकते हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट प्लेट्यूज. नाउ व्हाट आर प्लेट्यूज? प्लेट्यूज इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सरफेस अबव द सराउंडिंग एरिया. प्लेट्यू क्या होता है? जैसे माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, प्लेट्यू होते हैं ऊंचे होते हैं लेकिन ये सीधे होते हैं. ये माउंटेन जैसे टेढ़े नहीं होते हैं. ये लैंड तो होती है लेकिन ये जो लैंड है ये बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं प्लेट्यूज. मीन्स ये माउंटेन नहीं है लेकिन ये एक हाइटेड पार्ट पे सिचुएटेड होती है और ये फ्लैट लैंड होती है. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. कुछ ये प्लेट्यूज की जो हाइट है ये अलग अलग वेरी होती है, मतलब कुछ प्लेट्यू ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं. Plateaus like mountains may be young or old. The Deccan Plateau of India is the one of the oldest mountain. Underline this student. जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो सबसे पुराना प्लेट्यू है. The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world. Underline this. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the sea level. सबसे पुराना प्लेट्यू है हमारा डेक्कन प्लेट्यू और सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वो है टिबेट प्लेट्यू. यू हैव टू लर्न दिस स्टूडेंट. प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल. क्यों यूजफुल होते हैं प्लेट्यूज हमारे लिए? बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यूज एरिया. प्लेट्यूज हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं क्योंकि यहाँ पे जो माइंस के काम होते हैं लाइक आयरन ओर और मिनरल्स, बहुत सारे ओर्स खदानें हमें यहाँ प्लेट्यू से मिलती हैं. The African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron ore, coal and manganese are found in Chota Nagpur Plateau. In the plateaus area, there may be several waterfalls as the river falls from the great height. Plateaus area में काफ़ी सारे waterfall भी होते हैं. In India, the Huntru Falls in Chota Nagpur Plateau on the river Subarnika and the Jog Falls in Karnataka, ये सब waterfalls के examples दिए हुए हैं यहाँ पे. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction for tourists. Now we come to plains, students. Now what is plains? Underline this. Plains are large stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above the mean sea level. जो plains हैं वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होते जहाँ पे हम सब रहते हैं. नॉर्मल जो वो है वो एरिया होता है प्लेन्स, और कुछ अगर हम हाइट पे जाएं तो वो प्लेट्यू और उससे ज़्यादा हाइट पे जाए तो वो माउंटेन्स. Others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. काफ़ी सारे plains कैसे बनते हैं? रिवर्स से और उनकी tributaries से. Some plains are extremely level. Other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slopes of mountain and erode them. अब कैसे plains बनते हैं? जब river flow down होती है तो वो माउंटेन से फ्लो डाउन होती है. तो अब क्या होता है, सी स्टूडेंट्स, जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से ये रिवर फ्लो कर रही है, तो जब ये फ्लो करेगी तो ये जो इसकी पीक है, ये माउंटेन का जो ये वाटर का फ्लो होता है वो इतना फास्ट होता है कि ये जो पीक है ये कट के नीचे आ जाती है, और जिसकी वजह से ये रिवर के साथ साथ जो भी इसके सेडिमेंट्स होते हैं वो सब बहते हैं. Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. अब जब ये रिवर बहेगी तो ये अपने साथ ये सारे जो भी माउंटेन की पीक में जो भी सेडिमेंट्स थे वो सब अपने साथ लेके बहेगी. फिर ये सारे सेडिमेंट्स एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और इसी से फॉर्म होता है हमारा प्लेन. ऐसे प्लेन बनते हैं. जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल.
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, प्लेन्स की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट वगैरह हो पाता है। दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लेन्स में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और माउंटेन्स इज़ थिनली पॉपुलेटेड क्योंकि वहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं उनकी वजह से ये प्लेन बनते हैं। एंड रिवर यांगजे इन चाइना, और चाइना में एक यांगजे रिवर है, वहाँ से प्लेन्स फॉर्म होते हैं। Plains are the most useful area for human habitation. There is great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are most densely populated region of the world. जो इंडिया है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स में रहते हैं। Landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous area. Plains provide much better condition. It is easy to grow crops. We have seen जैसे plains पे ज़्यादा लोग रहते हैं और even plains पे लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं. Build a house or road in a plain than a mountain. Can you point out some difference in the ways people live on different kinds of landforms? Some natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and flood cause widespread destruction. Huge loss of life and property take place. By creative awareness about such incidents, we may lower the risk. कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, एकदम से फ्लड, बाढ़ आ गई, तो हमें अगर इसके बारे में पहले से अवेयरनेस होगी तो हम इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे और इसकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगी. यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर. क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड. अब हम जो लैंड है हम उसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे एक अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, फर्टाइल लैंड थी, और हमने उस पर घर बनवा दिया तो हमने वो लैंड को वेस्ट कर दिया. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी. और इसी तरीके से हम गार्बेज कचरा लैंड पे फेंकते जाते हैं या फिर वाटर में फेंकते हैं और जिससे वाटर का जो वाटर है वो ख़राब हो जाता है. We should avoid using such important gifts of nature in careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. हमें अपने लैंड को ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए और ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अपनी अर्थ को अच्छा बनाएं. जो आगे आने वाली जनरेशन है हम उसके लिए अपनी अर्थ को अच्छा बनाएं. सो हियर आर चैप्टर एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. And if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.